Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. This is Swati, your communication coach and advanced level किस चीज़ के advanced level of spoken English course में you all are welcome and this beautiful course has been presented to you by Magnet Brains. Now here in reading comprehension, let's continue with our book. The name of the book is Broken Flutes, written by Shada Dwivedi, and here we are on this chapter. The name of the chapter is Making Friends with a Crook, because Nishad wants to be friends with Mr. Nath and as per Maya he is a crook, right? तो अब निशाद को उनसे दोस्ती करनी है. Let's see what happens. My foolish brother was determined to befriend the crook. मेरा जो बेवकूफ़ भाई था वो डिटरमाइंड था, मतलब उसने ठान लिया था कि वो उस क्रूक से दोस्ती करेगा. बी-फ्रेंड समवन मतलब होता है उसके साथ दोस्त बनना. He went alone to the clinic with mama a couple of weeks later. So कुछ weeks बाद वो मम्मा के साथ अकेले क्लिनिक गया. Sadly I couldn't go. दुख के साथ मैं जा नहीं पाई. I had to finish the awful task of writing 100 lines of I will not yawn in the class said by our history teacher. मुझे जो था एक बहुत ही गंदा काम दिया हुआ था. awful का मतलब होता है बहुत ही बुरा टास्क दिया हुआ था जिसमें मुझे 100 टाइम्स एक लाइन लिखनी थी. I will not yawn in the class मतलब मैं क्लास में उबासी नहीं लूँगी. और ये उसे किसने दिया था? उसके हिस्ट्री टीचर ने. It was not fair. I grumbled to myself. Everyone in this world cannot be expected to like a dull subject like history. मेरे हिसाब से तो वो सही नहीं था. I grumbled to myself मतलब मैंने गुस्से में खुद से कहा कि पूरी दुनिया में हर कोई से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि उसे हिस्ट्री जैसा बोरिंग सब्जेक्ट अच्छा लगे. When Mama and I and Nishad returned in the evening, I noticed that he was rather quiet and his mouth was drooping at the corners. So जब मम्मा और निशाद वापस आए क्लिनिक से शाम को तो मैंने नोटिस किया, मतलब मैंने इस चीज़ पे गौर फरमाया that निशाद जो था वो काफ़ी चुप था और his mouth was drooping at the corners. हमारा माउथ अगर ड्रूप करता है मतलब ऐसा हो जाता है, इसका मतलब you're sad or you're not feeling good, right? What's the matter, Seven? I asked him, putting my arm affectionately around his thin shoulder. तो मैंने उसके thin shoulder मतलब उसके जो दुबले पतले shoulder थे उस पर अपना आर्म रखा. मैंने पूछा क्या हो गया सेवन? I went to his room because I wanted to make friends with him, Maya. मैं उनके रूम में गया क्योंकि मुझे उनके साथ दोस्ती करनी थी, माया. निशाद said almost in a whisper. उसने बहुत ही फुसफुसाते हुए ये चीज़ कही. I took a deep breath to give me enough courage to knock. So I took a deep breath. मैंने एक लंबी सांस ली ताकि मुझे मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाए, करेज आ जाए कि मैं नॉक कर सकूं. And then I heard an odd sound from the room. फिर मुझे रूम से एक अजीब सी साउंड आई. I put my ear to the door and do you know what I heard? तो मैंने अपने कान को दरवाजे पे लगाया. तुम्हें पता है मैंने क्या सुना? Someone was crying and I knew it was Mr. Nath. कोई रो रहा था वहाँ पे और मुझे पता है वो मिस्टर नाथ थे. I did want to go in to comfort him. मैं अंदर जाना चाहता था ताकि मैं उन्हें comfort कर सकूं. But I had changed my mind. लेकिन मैंने फिर अपना इरादा बदल दिया. I hate anyone to see me crying. मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझे रोते हुए देखे. Maybe he feels the same. हो सकता है वो भी वही फील करते हों. Why do you think he was crying, Maya? क्या लगता है तुम्हें वो क्यों रो रहे थे? He's probably worried and scared that the police are going to catch him soon, I told him. तो माया ने अपना दिमाग लगाया और क्या बोला? मुझे लगता है वो परेशान हैं और डरे हुए हैं कि पुलिस उनको बहुत जल्दी पकड़ लेगी. No, no, Maya, I know you're wrong, he protested. तो उसने जो है प्रोटेस्ट करते हुए बोला, अपनी बात को मनवाने की कोशिश करते हुए बोला, नहीं माया नहीं, मुझे पता है तुम गलत हो. All right then, maybe he was sobbing because he is feeling sorry about the crimes he has committed. In that case, he really should give himself up to the police right away. तो हो सकता है, तो उसने माया ने बोला अच्छा चलो ठीक है, हो सकता है. He was sobbing. Sobbing का मतलब होता है फूट फूट के रोना. तो वो इसलिए रो रहे थे क्योंकि अब उन्हें ना बुरा लग रहा है कि मैंने कितने सारे क्राइम्स करे हैं ज़िंदगी में और इस केस में मुझे लगता है उन्हें अपने आप को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए. I hate you, Maya, Nishad said angrily, running out of the room. You talk such rubbish sometimes. मैं तुमसे हेट करता हूँ, मतलब बहुत गुस्से में उसने बोला मुझे तुमसे I hate you, Maya. तुम कभी कभी कितनी रबिश बातें करती हो. वो कमरे से दौड़ते हुए चला गया.
आई क्वाइटली फॉलोड हिम, मतलब मैं चुपचाप उसके पीछे गई। आई न्यू आई हैड अपसेट हिम विद माई थ्योरीज अगेन, मुझे पता था कि मैंने उसे अपनी थ्योरीज से फिर से अपसेट कर दिया था। आई पीप्ड इन टू ममाज रूम, मैंने झांक के ममा के रूम में देखा। ही वॉज नॉट देयर, वो वहाँ पे नहीं था। शी वॉज बिजी ऑन द फोन टॉकिंग टू जीजी, वो जीजी से बात कर रही थी। एंड आई न्यू द कॉन्वर्सेशन एज यूजुअल वुड गो ऑन फॉर एवर, और मुझे पता था वो कॉन्वर्सेशन बहुत लंबा चलने वाला है। आई टिप टोड टू द किचन, टिप टोड का मतलब होता है दबे पाँव आगे बढ़ना। एंड देयर ही वॉज, मैं किचन में गई दबे पाँव, मैंने वहाँ पे क्या देखा, द लिटिल बेबी सिटिंग ऑन गोविंदाज लेप, तो मेरा जो छोटा भाई था वो गोविंदा की गोदी में बैठा हुआ था, विद हिम्स आर्म्स अराउंड द ओल्ड मैन, तो उसने मतलब गोविंदा को इस तरीके से हक किया हुआ था। एंड हिज लिटिल हेड रेस्टिंग ऑन गोविंदा शोल्डर, और गोविंदा के शोल्डर में इस तरीके से उसने अपना सर रखा हुआ था। What has upset you, my little one? अरे मेरे बच्चे, तुम्हें किस चीज़ ने दुखी कर दिया? Asked गोविंदा rocking himself back and forth. Rocking himself back and forth मतलब इस तरीके से जो बच्चों को करते हैं ना, अरे मेरे बच्चे किसने तुम्हें दुखी कर दिया? As he held निशाद close, निशाद को उन्होंने गले लगाया हुआ था। Why do people cry, गोविंदा? निशाद asked, his eyes looking just like a cocker spaniel's. तो उसने पूछा, गोविंदा लोग रोते क्यों हैं? Why do you cry? The old man asked. उन्होंने पूछा, तुम क्यों रोते हो? I cry when I hurt myself after a fall, but that's only sometimes, said Seven. Seven ने कहा, मैं तब रोता हूँ जब मैं गिर जाता हूँ कहीं से और मुझे लग जाती है, लेकिन वो सिर्फ कभी कभी होता है। And you cry when I beat you up, I said. और मैंने कहा कि और तुम तब भी रोते हो जब मैं तुम्हारी पिटाई कर देती हूँ। Seven suddenly noticed my presence in the kitchen. तो तभी Seven ने देखा कि मैं भी हूँ किचन में। Don't listen to her, गोविंदा, she is mad, he said. उसने बोला, गोविंदा तुम उसकी बात मत सुनो, वो पागल हो गई है। She thinks she knows everything about everything. उसे लगता है उसे हर चीज़ के बारे में सब कुछ पता है। She is a crybaby herself. वो खुद तो रोती रहती है। She locks herself in the bathroom and sobs every time she gets scolded by you or mama. वो अपने आप को बाथरूम में लॉक करके रोती है जब भी उसको आपसे या मम्मा से डांट पड़ती है। But then she is only a girl and girls cry for no rhyme or reason. लेकिन फिर वो तो एक लड़की है और लड़कियां तो बिना रीजन के बिना मतलब के रोती हैं। They are idiotic, मतलब वो लोग तो पागल होती हैं। Rubbish, I said indignantly with my hands on my hips. तो मैंने ऐसे करके rubbish बोला। Rubbish मतलब एकदम गुस्से में मैंने क्या कहा, rubbish. निशाद ignored my remarks. निशाद को कोई फर्क नहीं पड़ा। Grown ups have everything in the world. Grown ups के पास तो सब कुछ होता है। They can do what they like. वो हर कुछ कर सकते हैं जो उन्हें पसंद है। Buy what they like. वो हर कुछ खरीद सकते हैं जो उन्हें पसंद है। Go where they please. जहाँ भी उनका मन करे वो जा सकते हैं। Why would they cry? वो क्यों रोएंगे गोविंदा? That's a difficult question, निशाद बाबा. गोविंदा answered quietly. गोविंदा ने चुपचाप कहा, ये तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। Adults don't cry unless there is a good enough reason. बड़े लोग जो होते हैं वो बिना रीजन के नहीं रोते। Like what? Seven asked impatiently. Seven ने बोला, ऐसा कौन सा रीजन होता है? Well, I can speak for myself. मतलब मैं अपने बारे में बता सकता हूँ। Sometimes when I play my old flute, कभी कभी जब मैं अपनी पुरानी बांसुरी बजाता हूँ, I remember my village. मुझे अपने गाँव की याद आ जाती है। I think of my childhood and my parents, my sister and my wife. मुझे मेरे गाँव की याद आ जाती है, मेरा बचपन याद आ जाता है, मेरे पेरेंट्स की याद आती है, मेरी बहन की याद आती है, मेरे वाइफ की याद आती है, who are all gone now. और अब उनमें से आज कोई भी जिंदा नहीं है। I think of the green paddy fields and the bullocks drawing water from the well on our farm. हमारे फार्म में जो ग्रीन पैडी फील्ड्स हुआ करती थी और किस तरीके से जो बैल थी वो कुएं में से पानी खींच रही होती थी, मुझे ये सब याद आ जाता है। I can almost hear the sounds of the river and the cow bells and the birds chirping in the early morning and the smell of wet earth after the first monsoon showers. मुझे ऑलमोस्ट सुनाई देता है अपने कान में वो बहती हुई नदी की आवाज़, बर्ड्स के चहचहाने की आवाज़, जो काउ बेल्स होती है उनकी आवाज़, और जब पहली बारिश होती है, बारिश के बाद जो मिट्टी की खुशबू आती है वो। When I remember all these things, my eyes fill with tears. और जब मेरे को ये सब याद आता है तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। गोविंदा had a far away look in his eyes. अब गोविंदा जो थे ना, जब हम किसी चीज़ को बहुत दिल से याद करते हैं तो हम खो जाते हैं, तो उनकी आंखों में वो far away look था, जैसे कि वो
याद कर रहे हैं उन सारी चीज़ों को। डू पीपल क्राई व्हेन दे आर पुअर? निशाद आस्क्ड। निशाद ने पूछा क्या लोग तब भी रोते हैं जब वो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं? यस दे माइट, Govinda told him, when they are so poor that they could not feed their children or buy them any clothes, what else can they do? हाँ, तब भी रो सकते हैं जब वो इतने गरीब होते हैं कि वो अपने लिए खाना अरेंज नहीं कर पाते, अपने बच्चों के लिए कपड़े नहीं ले पाते, तब वो और क्या करेंगे? Sometimes people cry when they are very lonely. कभी कभी लोग जब बहुत ज़्यादा अकेले हो जाते हैं तब भी रोते हैं। Without any family or friends, जिनके ना कोई फैमिली होते हैं ना फ्रेंड्स होते हैं। Sometimes they cry when someone they dearly love dies. कभी कभी वो रोते हैं जब उनसे कोई जो उनका बहुत ज़्यादा अपना होता है, बहुत ज़्यादा प्यारा हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। That's true, Govinda. निशाद इंटरप्टेड। निशाद ने बीच में बोला, हाँ तुम सही कह रहे हो। We all cried and cried so much when Papa died. हम सब कितना रोए थे जब पापा की डेथ हो गई थी। मम्मा cried the most, didn't she? मम्मा सबसे ज़्यादा रोई थी। As though you remember 7, you were just a baby then. हाँ जैसे तुम्हें बड़ा याद है 7, तुम तो सब एक छोटे से बेबी थे। But I was quite grown up, I do remember. लेकिन मैं बड़ी हो गई थी और मुझे सब याद है। I noticed Govinda quickly brushing tears away with the back of one hand. तभी मैंने नोटिस किया कि गोविंदा जो था अपने हाथ के पीछे से अपने आंसू पोंछ रहा था। Enough talk about crying, my little ones, he said, lifting निशाद off his lap. तो अपनी गोदी से निशाद को उतारते उन्होंने कहा चलो चलो रोने के बारे में बहुत बात हो गई। You have got a long happy life ahead of you. तुम लोगों के सामने एक बहुत खुश और बहुत लंबी जिंदगी है। I want you both to grow up and be fine, kind and considerate people. मैं चाहता हूँ तुम दोनों अच्छे से बड़े हो जाओ, दयालु बनो, कंसिडरेट बनो, so that your mother can be proud of you, ताकि तुम्हारी माँ तुम पे बहुत ज़्यादा प्राउड कर सके। Come on now, let me give you some dinner. चलो चलो अब मैं तुम्हें डिनर दे देता हूँ। During the first 2 weeks of July, we did not go with Mama to Girgaon as it had been raining almost continuously. अब first 2 weeks of July में हम लोग नहीं गए मम्मा के साथ क्लिनिक क्योंकि ऑलमोस्ट हर दिन बारिश हो रही थी और कंटिन्यूसली बारिश हो रही थी। One Thursday there was a break in the showers. एक थर्सडे था जिस दिन बारिश नहीं हो रही थी and the sun shone brightly और सन बहुत ब्राइटली चमक रहा था। So Mama took us with her to the clinic. तो मम्मा हमें अपने साथ क्लिनिक लेके गई। As planned, Nishad and I walked towards the door of number 10. तो जैसा हमने प्लान किया था हम दोनों 10 नंबर डोर की तरफ गए। We stood outside the door arguing about who should be the one to knock. तो हम दोनों डोर के बाहर खड़े हो गए और हम दोनों बहस करने लग गए कि कौन डोर को नॉक करेगा। The door suddenly opened and the man's body filled the door frame. तभी डोर अचानक से ओपन हो गया और मिस्टर नाथ खड़े हो गए तो क्या वो पूरा जो दरवाजे का फ्रेम था वो कवर हो गया। Hello, he said. May we come in please? 7 asked. He looked puzzled. तो 7 ने कहा हेलो क्या हम अंदर आ सकते हैं? तो उन्होंने बोला माया एंड आई वॉन्ट टू बी योर फ्रेंड्स मिस्टर नाथ, निशाद टोल्ड हिम। निशाद ने कहा मैं और माया आपके दोस्त बनना चाहते हैं। आई वॉज सीथिंग, मैं बहुत गुस्सा थी, बहुत एंग्री थी। I certainly did not want to be a crook's friend. I just wanted to know more about him. मैं उसकी दोस्त नहीं बनना चाहती थी, मैं सिर्फ उसके बारे में और जानना चाहती थी। I kept quiet. Mr. Nath just stood there staring at us. तो मैं तो चुप रही और मिस्टर नाथ सिर्फ हमें देख रहे थे। Well, aren't you going to ask us in? I said, voicing my impatience. अब मेरा सब्र का बांध टूट रहा था, मैंने बोला आप हमें अंदर नहीं बुलाएंगे? Mama says it's bad manners to keep people you know standing at the door. मम्मा कहती है जिन लोगों को आप जानते हो उनको दरवाजे पे खड़े रखना नहीं चाहिए। She says you must always invite them in, except when they are strangers. वो ये कहती हैं कि आपको हमेशा उन्हें अंदर बुलाना चाहिए, हाँ अनलेस वो स्ट्रेंजर से अंदर मत बुलाओ वरना तो बुलाना चाहिए। फॉर देम वी लीव द चेन ऑन द डोर बट यू नो अस डोंट यू। और जो स्ट्रेंजर्स होते हैं उनके लिए हम दरवाज़ा थोड़ा सा ओपन करते हैं और चेन लगे रहने देते हैं, लेकिन आप तो हमें जानते हो। येस ऑफ कोर्स ही सेड मूविंग अवे फ्रॉम द डोर सो दैट वी कुड एंटर। तो उन्होंने बोला हाँ ऑफ कोर्स, और वो साइड हो गए ताकि हम एंटर कर पाएँ। वी क्विकली वेंट इन बिफोर ही चेंज हिज माइंड। इससे पहले कि अपना इरादा बदले हम अंदर चले गए। निशाद sat on the only chair and I on the steel trunk. निशाद जो था वो एक ही चेयर थी वहाँ पे उस रूम में, उस पे बैठ गया और मैं उस स्टील ट्रंक पे बैठ गई। The man stood near the bed looking bewildered. जो वो आदमी थे जो मिस्टर नाथ थे वो वहाँ पे बेड के पास में खड़े हो गए
और बहुत ही कंफ्यूज लग रहे थे, bewildered मतलब बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज लग रहे थे। Won't you sit down? I asked politely. He sat on the bed. मैंने पूछा कि आप बैठोगी नहीं, तो वो धीरे से बेड पे बैठ गए। And now what's going to happen next, that we are going to understand in our next video. Thank you so much for watching this video. And now if you wish कि आपका spoken English का जो course है वो complete हो जाए with all the sections like vocabulary building, reading comprehension, then we have conversation practice, then we have grammar sessions, and of course don't forget quick bites. So if you wish कि आपका स्पोकन इंग्लिश कोर्स बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए, so you will have to buy the subscription. The link for the same is there in the description box, and once you do that, so उसके बाद क्या करना है, सिर्फ बहुत सारी पढ़ाई करनी है, and trust me, English is going to be so easy for you. You are going to be absolutely fluent. So what are we waiting for? Just buy the subscription and start learning now.